بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے آپ نے بہت تاخیر کر دی، اسحاق ڈار کا غفور حیدری کو جواب۔ ہم تو چاہتے تھے کہ مل کر چلائے مگر رابطہ نہ ہو سکا۔ اسحاق ڈار کا عبدالغفور حیدری سے ملاقات میں پیشکش پر جواب۔ کہا نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ شراکت اقتدار کا معاہدہ کر لیا۔ نون لیگ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے والی ہے۔ جے یو آئی کی پیشکش کے حوالے سے اعلیٰ قیادت کو آگاہ کیا جائے گا۔ بے ضابطیوں کے کسی بھی دعوے کی تحقیقات دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندیوں پر تشویش ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ پاکستانی حکام سے بنیادی آزادیوں کا احترام کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں اتحادی حکومت بنائے جانے پر تبصرہ نہیں کریں گے۔ اظہار رائے کی آزادی کا احترام ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں سیاسی اتحاد اس ملک کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ 13 سیاسی جماعتیں قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی دوڑ سے باہر۔ جن جماعتوں کو مخصوص نشستیں ملیں گی ان میں مسلم لیگ نون کو قومی اسمبلی میں 16 خواتین اور 4 اقلیتوں کی مخصوص نشستیں ملنے کا امکان۔ پیپلز پارٹی کو 11 خواتین اور 2 اقلیتوں کی مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں۔ ایم کیو ایم کو قومی اسمبلی میں خواتین کی 4 اور 1 اقلیتی نشست ملنے کا امکان ہے۔ پی ٹی آئی کی 27 مخصوص نشستوں کا مستقبل الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے۔ الیکشن کمیشن کی ثوابدید پر خواتین کی 23 اور 4 اقلیتی نشستیں سنی اتحاد کونسل کو ملیں گی۔ سنی اتحاد کونسل میں آزاد امیدواروں کی شمولیت جاری۔ الیکشن کمیشن میں اب تک 86 آزاد امیدواروں کے بیان حلفی جمع کرائے جا چکے۔ پنجاب اسمبلی کے 105، خیبر پختونخوا سے 85، سندھ سے 9 اراکین سنی اتحاد کونسل میں شامل۔ تحریک انصاف نے پنجاب میں حکومت سازی کے لیے رابطے تیز کر دیے۔ متعدد آزاد امیدواروں کا سنی اتحاد کونسل پر تحفظات کا اظہار۔ میاں اسلم اقبال کے آزاد امیدواروں سے رابطے، کئی ارکان نے سوچنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی کا نام سامنے آ گیا۔ گورنر پنجاب کی دوڑ میں محسن نقوی بھی شامل۔ مخدوم احمد محمود، قمر زمان کائرہ، چودھری منظور اور ندیم افضل چند کے نام گورنر پنجاب کے لیے زیر غور۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان، وزیر اعلیٰ سندھ، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے ناموں پر مشاورت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے میر صادق عمرانی، نواب ثناء اللہ زہری اور سرفراز بگٹی کے نام سامنے آ گئے۔ وفاق میں حکومت سازی کا مشن، ایم کیو ایم پاکستان اور نون لیگ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور۔ دونوں جماعتوں کا سیاسی، جمہوری اور معاشی استحکام کے لیے مفاہمت اور باہمی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ وسائل، اختیارات اور اقتدار کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا جائے گا۔ حکومت سازی کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے وفود کی مزید ملاقاتیں متوقع۔ نگران وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس دن 12 بجے اسلام آباد میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ملک میں امن و امان کی صورتحال پر بات ہوگی۔ ملکی معاشی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ نگران کابینہ ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق کرے گی۔ اجلاس میں انتخابات کے بعد حکومت سازی اور انتقال اقتدار سے متعلق امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ جب دوسرے صوبوں سے لوگ پنجاب آتے ہیں تو وہ ایک کلیئر ڈفرنس دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ یہ سب نہیں ہوا، یہ کام کسی نے کیا ہے، یہ سڑکیں کسی نے بنائی ہیں، یہ ٹرانسپورٹ سسٹمز کسی نے بنائے ہیں، یہ ہاسپٹل کسی نے بنائے ہیں، یہ اسکولوں میں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں جو بہتری آئی ہے، انفراسٹرکچر میں جو اتنا کام ہوا ہے، یہ کسی نے کیا ہے، یہ اپنے آپ نہیں ہوا۔ جہاں کام کیا ہے وہاں نظر آتا ہے، جہاں خالی باتیں ہوئی ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو گورننس میں ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا شہباز شریف صاحب نے، جس کی تقلید لوگ کرنے کی کوشش کرتے تھے اور جس کی مثال لوگ دیا کرتے تھے، پنجاب میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک بھی آئی ٹی سٹی نہیں ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی 5 سال میں، میری کوشش ہوگی اس سے زیادہ ہو،
लेकिन 5 IT सिटीज बनाकर जाएंगे। करप्शन, गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर रेड लाइन है। इस मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी हुकूमत की तरजीहात बता दी। कहा चैलेंजेस बहुत ज्यादा, काम करने के लिए 5 साल 24 घंटे भी कम है। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, ज़राअत, IT की मुसावी तकसीम होगी। हर हल्का, जिला, यूनियन कौंसिल और हर डिवीजन को मॉडल बनाना हमारी जिम्मेदारी है। बानी PTI के दौर में करप्शन की तारीख रकम की गई। नवाज शरीफ हुकूमतों की निगरानी और पूरे 5 साल सियासत में सरगर्म रहेंगे। मरियम नवाज ने पंजाब में 5 साल में 5 IT सिटीज बनाने, एयर एम्बुलेंस शुरू करने का ऐलान भी किया। पंजाब असेंबली का स्पीकर कौन होगा? नून लीग के मलिक अहमद खान सबसे मजबूत उम्मीदवार। ख्वाजा सलमान रफीक, मियां मुजतबा, शुजाउर रहमान का नाम भी ज़ेरे गौर। मरियम नवाज की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी का इजलास। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के हवाले से मुशावरत। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की जाती उम्र आमद। मरियम नवाज से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। जज के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाए तो इस्तीफे के बावजूद खत्म नहीं होगी। रिटायर्ड या मुस्ताफी जज के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को होगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकन लार्जर बेंच ने 4-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अपील जायदुल मयाद होने की हद तक फैसले से इख्तलाफ किया। अदालती फैसले के बाद मुजाहिद नकवी के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत मिल गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन और अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। विफाकी कैबिनेट ने 5 रुकनी GIT तश्कील दे दी। एडिशनल DG FIA सरबराह मुकर्रर। नादरा और खुफिया एजेंसियों के नुमाइंदे भी शामिल। जाली बैलेट पेपर्स छापने और प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकारी अफसरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है। GIT जिम्मेदारान का तयन करके मुकदमात का अंदराज और मुस्तकबिल में सदेबाब के इकदाम तजवीज़ करेगी। तहकीकात के दौरान IT माहिरीन की खिदमात हासिल करने की भी मंजूरी दी गई। पिशावर हाई कोर्ट में मियां असलम इकबाल की राहदारी जमानत मंजूर। जस्टिस वकार अहमद ने PTI के नामजद वज़ीर आला पंजाब की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। असलम इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा नून लीग कह रही है हमारे साथ मिल जाओ वरना तुम्हारा नोटिफिकेशन मुअत्तल हो जाएगा। जिना हाउस समेत किसी भी हमले में मुलव्विस हूं तो सबूत सामने लाएं। पुरअमन शहरी है, ये इदारे हमारे हैं। कई माह से रूपोश फैसल जवेद भी इस्लामाबाद की मुकामी अदालत के रूबरू पेश। वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। PTI सेनेटर के खिलाफ थाना बनी गाला में मुकदमा दर्ज है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के सिविल जज कुदरतुल्लाह का मुकदमे का रिकॉर्ड 13 मार्च को पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात का अदम करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदम पेशी पर दरख्वास्त गुजार पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। ये अली खान कौन है? लगता है दरख्वास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट किया है। सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त गुजार का ईमेल मौसूल हुआ जिसमें लिखा है बैरून मुल्क होने की वजह से अदालत पेश नहीं हो सकता। ये कैसा बंदा है? दरख्वास्त दायर करके खुद बैरून मुल्क चला गया। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अली खान साबिक ब्रिगेडियर हैं। उनका 2012 में कोर्ट मार्शल हुआ था। अली खान के घर पुलिस भी गई। वजारत दिफा के जरिए नोटिस भी भेजा। रावलपिंडी के किसी हलके में कोई धांधली नहीं हुई। तमाम DROs और ROs ने धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम 6 DROs के तहरीरी बयानात कलमबंद किए। कौमी असम्बली की 13 और सूबाई असम्बली के 26 रिटर्निंग अफसरान ने भी बयानात रिकॉर्ड कराए।
जमात इस्लामी का इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन बनाने का मुतालबा। सिराजुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कराची में हमसे 6 हल्के छीने गए। इन हल्कों के 99% फॉर्म 45 मौजूद हैं। अब तो अमरीका ने भी कह दिया तहकीकात होनी चाहिए। गुज़िश्ता इलेक्शन में RTS और इन इंतखाबात में EMS नाकाम हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। तौहीन अदालत केस DC इस्लामाबाद की गैर मशरूत माफी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इरफान नवाज मेमन को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। दूसरे शोकोज का पीर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने DC को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए, आप कौन सा ऑर्डर समझते हैं कि आप समझते हैं ये मजाक है? ये केस अब तक मुकम्मल हो जाना चाहिए लेकिन आपकी वजह से नहीं हो सका। इरफान नवाज ने कहा, अदालती हुक्म अदूली का सोच भी नहीं सकता। अदालत ने केस की समाअत 1 मार्च तक मुलतवी कर दी। DC इस्लामाबाद की इंट्रा कोर्ट अपील पर एतराज़ात आयद आज समाअत के लिए मुकर्रर। सानेहा उमैया और GHQ हमला केस में पेशरफ्त। साबिक डिप्टी स्पीकर असम्बली वासी कयूम अब्बासी का अदालत को दिया गया 164 का बयान सामने आ गया। बानी PTI को सानेहा उमैया का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा, PTI की जानिब से अदारों की तस्लील का मकसद एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया का आगाज करना था। एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया फैलाने का टास्क मरकजी क़यादत को सौंपा गया। निगरान दौर में जीना ही नहीं, जान बचाना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत ने एक बार फिर अदवायात की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। 146 जान बचाने वाली अदवायात की कीमतों में इजाफा। कैंसर की अदवायात, वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स मजीद महंगी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हुकूमत को 262 अदवायात की कीमतों में इजाफे की समरी भेजी थी। कौन बनेगा किरत का सुल्तान? पाकिस्तानियों की आवाज़ को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए न्यू न्यूज़ टीम के शहर शहर डेरे। अगला पड़ाव पेशावर। रावलपिंडी में हुए ऑडिशन में बच्चों और बड़ों की तलावत ने सुनने वालों पर सहर तारी कर दिया। न्यू न्यूज़ के ज़ेर एहतमाम हुस्न किरत के मुकाबलों में किरत का सुल्तान बनने का मौका सबके लिए। सहाफत का एक और ताबिंदा सितारा बुझ गया। सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार नज़ीर नाजी 81 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नज़ीर नाजी काफ़ी अरसे से अलील और लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उन्हें सहाफ़ती खिदमात के तरफ में हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का नज़ीर नाजी की वफ़ात पर गहरे रंजो गम का इजहार। मरहूम के बुलंदी दराजात के लिए दुआ की। दुनियापुर में वैन और ट्रॉली में टक्कर। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और 17 अफराद जख्मी। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन, 1 बच्ची और 2 मर्द शामिल, 7 खवातीन। और मुल्तान सुल्तान्स की फतुहात और लाहौर कलंदर्स की शिकस्त की हैट्रिक। मुल्तान सुल्तान्स ने 5 विकेटों से हरा दिया। 167 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। इफ्तिखार अहमद की 11 गेंदों पर 34 रन की जारहाना इनिंग्स। मोहम्मद रिजवान 82 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कराची किंग्स ने पेशावर ज़ुल्मी को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबले होंगे।